हरे कृष्ण। तो परम आराध्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद महाराज समस्त गुरु आचार्य वर्ग आम गुरु परंपरा समस्त गुरु आचार्य वर्ग चरण रे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करी कृपा व्याख्या करी आम आज सत्र को आम आरंभ करिया। तो उपस्थित समस्त श्रद्धालु वैष्णव मान चरण वैष्णव मान चरण रे और सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज क्लास आमर भगवद गीता श्लोक सप्तम अध्याय 7 नंबर श्लोक पर्यंत पंकज नव सार से पर्यंत कंप्लीट कर देथिले। तो मु ओडिया रे इतपै कहूची जे तो नितेश प्रभु तो आसी नांदी। तो सप्तम अध्याय अष्टम श्लोक रु हमर आज क्लास आरंभ होवा कथा। तो आज होची पवित्र कार्तिक मासर से शुभ दिन जो दिन कि भगवान गोवर्धन लीला करथिले। तो आमे किछि समय ए सप्तम अध्याय अष्टम श्लोक आमे डिस्कशन करिवा। और तापरे आमे किछि समय अल्प समय पय आमे गोवर्धन लीला अल्प समय तो बहुत कम अछि। तो समस्ते ऑप्शनल ड्यूटी जिबे। आमे एक अल्प समय गोवर्धन लीला भी बहुत अल्प समय चुंबक रे आमे से ताकू भी कंप्लीट करे। कंप्लीट तो नहीं माने श्रवण करे में चेष्टा करिया। आचार्य प्रभु हरे हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। प्रभु जी हिंदी में होने से तो ठीक रहेगा क्योंकि बामनी प्रभु माता जी कोई है जो उड़िया नहीं समझ सकती है शायद। Thank you sir, thank you. हरे कृष्ण सर। We'll continue in Hindi, no issue. Thank you sir for this information. तो हम शुरू करते हैं भगवद गीता का सप्तम अध्याय 8वां श्लोक। तो इस प्रकार से है। रसहमप्सु कौन्तेय प्रभस्मि सशिशूरय प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु। Translation by Srila Prabhupada Maharaj. O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. Translate purport by Srila Prabhupada Maharaj. भावार्थ purport Srila Prabhupada Maharaj के द्वारा। This verse explains how the Lord is all pervasive by his diverse material and spiritual energies. The Supreme Lord can be preliminarily perceived by his different energies, and in this way he is realized impersonally. As the demigod in the sun is a person and is pursued by his all-pervading energy, the sunshine. So the Lord, although in his eternal abode, is pursued by his all-pervading diffusive energies. The taste of water is the active principle of water. No one likes to drink sea water because the pure taste of one of the energies of the Lord. The impersonalist perceives the presence of the Lord in water by its taste, and the personalist also glorifies the Lord for his kindly supplying tasty water to quench man's thirst. That is the way of perceiving the Supreme. Practically speaking, there is no conflict between personalism and impersonalism. One who knows God knows that the impersonal conception and personal conception are simultaneously present in everything and that there is no contradiction. Therefore, Lord Chaitanya established his sublime doctrine, Achinta Veda and Aveda Tattva, simultaneous oneness and difference. The light of the sun and the moon is also originally emanating from the Brahmajyoti, which is the impersonal effulgence of the Lord, and Pranava or the Omkara, transcendental sound in the beginning of every Vedic hymn, addresses the Supreme Lord, because the impersonalists are very much afraid of addressing the Supreme Lord Krishna by his innumerable names. They prefer to vibrate the transcendental sound Omkara, but they do not realize that Omkara is the sound representation of Krishna.
The jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere, and one who knows Krishna consciousness is blessed. Those who do not know Krishna are in illusion, and so knowledge of Krishna is liberation, and ignorance of him is bondage. हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद महाराज ये जो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे हैं, तो ये 7वां चैप्टर जो है भक्ति षटक इससे शुरू हुआ है। तो पहला चीज जो है, तो भगवान का जो ऐश्वर्य प्रकाश है, तो कौन है भगवान, कौन है? पहले तो जीव का क्या है, तो सेकंड चैप्टर में भगवान क्लियर करेंगे आप कौन है, पहले जानिए स्पिरिट सोल क्या है, फिर अपने बारे में उसका जो कर्म है, तो उसका जो कर्म है, कैसे कर्म करना है, क्या करना है, ये सब 6 के अंदर कर्म षटक के अंदर वो कंप्लीट करते हैं। फिर जैसे ही भक्ति षटक में 7वां चैप्टर शुरू करते हैं भगवान, तो वहां पे ये अपने जो ऐश्वर्य प्रकाश है, उनका जो परवेडिंग मतलब ऑल परवेडिंग है, तो उनका जो ऐश्वर्य प्रकाश को वो प्रकाश कर रहे हैं कुछ श्लोकों में। ऐसा ये सीरीज ऑफ श्लोक अभी चलने वाला है, मतलब 8 से लेकर 13 तक। ये 13 तक जो ये जो सारे श्लोक में भगवान ये बताएंगे वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो फैले हुए हैं, तो उनके बिना कुछ भी नहीं है, ऐसा उस श्लोक के माध्यम से वो जो है अर्जुन को ये बता रहे हैं। तो जीव जो है, हम मनुष्य को ये नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे भगवान, हर जगह तो भगवान का एनर्जी है, लेकिन वो कहाँ कहाँ भगवान स्पेसिफिक किए हैं कि वहाँ कैसे कैसे हम उनको कहाँ कहाँ पर याद कर सकते हैं। तो इसी क्रम में चलते हुए भगवान ये 8वां श्लोक से शुरू करते हैं। पहले तो बता दिए कि मणि सूत्रमणि गणाय, मतलब सारे जो चीज है वो उनके अंदर ही है, तो उनके स्वरूप का प्रकाश है, इसलिए सब जैसे धागे में जो मणि जो है, मणि का माला जो है बनता है, धागा में जो पिरोते हैं, तो ऐसा उनके अंदर ही सब एग्जिस्ट करता है, उनके अलावा और कहीं पे भी कुछ नहीं है। ठीक उसी क्रम में जाते हुए पहला श्लोक बता रहे हैं, 8वें से शुरू करते हैं। तो रसहम अपसु कौन्तेय सन ऑफ कुंती, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो पानी का जो जल का जो स्वाद है वो अवर्णनीय है, मतलब वो उसको जो भी उसको पीता है, जो प्यासा होता है, वो जैसे ही वो जल को पीता है, तो उसके अंदर का जो जिसको भी जो शरीर मिला है, उसी हिसाब से वो अपना जो थर्स्ट है, अपना जो प्यास है, उसको बुझा सकता है। पानी जब प्यास लगता है, तो पानी के अलावा अगर उसको कुछ भी देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो पसंद नहीं करेगा, चाहे वो करोड़ों रुपए का भी हो, लेकिन वो उनको वो प्यास नहीं बुझा सकता। तो उनको वो जो तृप्ति उसको मिलता है, जो स्वाद उसको आता है, जो पीने वक्त जो स्वाद उसको आता है, वही बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं वहां हूं। तो भगवान को उपलब्धि करने का, अनुभव करने का, भगवान के प्रेजेंस को अनुभव करने का ये उपाय सारे भगवान यहाँ पर बताएंगे, कहाँ कहाँ पे भगवान कैसे कैसे अपना ऐश्वर्य प्रकाश कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ 7वां अध्याय जो है यहाँ पर ग्लिम्स दे रहे हैं, फिर आगे चल के पूरा जो है उसका जो चैप्टर चलेगा 10वां अध्याय में पूरा वो एलाबोरेट करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ ग्लिम्स में ही आ रहे हैं, तो उसी क्रम में वो 10वां अध्याय आएगा। फिर रसोहम अपसु कौन्तेय, तो उसका जो स्वाद है वो मैं, तो भगवान इधर बोले। लेकिन अगर हमको समंदर का जल दिया जाएगा, वो भी तो जल है, तो हमारा प्यास बुझा सकता है कि हम उसको पसंद नहीं कर, उसको हम पी नहीं सकते हैं। लेकिन जो जल पीने लायक है, तो वही भगवान ने अपने सृष्टि में उसको दिया है कि कुछ जल है जो आप पी सकते हैं, निर्मल जल है, तो वो निर्मल जल को हम पीकर हम अपना जो प्यास है उसको बुझा सकते हैं। तो वहीं पर भक्त जो है, भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप भगवान की उपस्थिति को आप अनुभव करिए। तो मैं वहां पर भी हूँ। जो पीते वक्त हम किसी किसी भगवान कहाँ है, जो निराकारवादी है, यहाँ पे प्रभुपाद महाराज परपट में लिखते हैं निराकारवादी है, वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान का तो वो तो रूप को नहीं मानते, बोलते कि ये जो जल है, इनका जो स्वाद है, वही भगवान है। तो ये भगवान है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका जो दिल्ली में बैठते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब उनका जो मिनिस्ट्री होता है, तो उसमें कोई बिल पास होता है, तो जो प्राइम मिनिस्टर का साइन हो जाता है तो पूरे देश में लागू होता है। लेकिन वो तो वहां पे बैठे, तो यहाँ पे कैसे उनका
जो पावर है इधर चल रहा है। अगर ये भौतिक जगत में ये संभव है, तो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान ने जो सृष्टि बनाई वहां पे क्यों संभव नहीं है? तो वहां पे भी वो जो जो आध्यात्मिक जगत में उसका छोटा छोटा रेप्लिका हमको ये भौतिक जगत में देखने को मिलता है। तो ठीक उसी क्रम में ये जो जल का जो स्वाद है उसमें भगवान की अनुभूति करना है तो भगवान इधर बोल रहे हैं। तो लाइट ऑफ द सन एंड द मून, तो सूर्य और चंद्रमा का जो उजाला है वो कहाँ से आता है? तो वो जो आता है, जो प्रकाश उनसे आता है, तो हम जब उनको अपने खुद को भी हम उन्हीं के प्रकाश से देखते हैं। तो जो सारे जगत को हम देखते हैं उन्हीं के प्रकाश में देखते हैं। तो उनका जो प्रकाश में हम देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वही जो उजाला है वो भगवान है। मतलब वहां पे वो उजाला कहाँ से लेते हैं? मतलब वो भगवान के ब्रह्म ज्योति से वो लेते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद महाराज परपट में लिख रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति से जो भगवान जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ उजाला है, लाइट है, जो एनर्जी है, वो भगवान से ही है। तो उनका जो उजाला से सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, अनेक ग्रह और भी होंगे, तो उन्हीं के उजाले से सभी आलोकित है। तो वो जो उजाला देते हैं तो उनसे लेकर देते हैं। तो हम उनका जो किरण हमको मिलता है, तो जो हमको उजाला जो प्रकाश हम देखने को मिलता है वो कैसे मिलता है? तो वहां पर भी हम भगवान को ही अनुभव करना चाहिए कि ये जो प्रकाश है ये अल्टीमेटली भगवान से ही आते हैं। तो ये जो प्रकाश हमको मिलता है, अगर सूर्य नहीं होंगे, चंद्रमा नहीं होंगे, उनके जो किरण है वो नहीं होगा तो जीव जगत भी असंभव है। जैसे जल के बिना भी असंभव है, जल ही जीवन है। तो भगवान कैसे कैसे जीव को कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो मतलब जीने के लिए वो हेल्प कर रहे हैं, मतलब सारे व्यवस्थाएं किए हैं। तो हम उनको अनुभव करना चाहिए। जो भी भगवान को नहीं मानता है, लेकिन इसको तो वो इनकार नहीं कर सकता, इनको तो मानना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जो निराकारवादी है ऐसे नहीं मानते, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, लेकिन इससे बच नहीं सकते, इनको तो वो मानते ही मानते हैं। तो इसी प्रकार से जो बोले यहाँ पर वो जो चैतन्य महाप्रभु जो बोले कि अचिंत्य भेदा अभेद तत्व, मतलब वो सेम है जो है कि भगवान का एनर्जी है तो भगवान से ही आते हैं। फिर अभेद भी है, तो वहां पे भगवान का एक स्वरूप भी है तो वो भी अलग है। तो स्वरूप जो है उनका जो वर्णन किया जाएगा तो वो अलग है, लेकिन उनसे उनका जो एनर्जी है वो उन्हीं से ही आता है। तो आपको एनर्जी को मानेंगे तो एनर्जेटिक को भी मानना पड़ेगा। तो अचिंत्य भेद अभेद सेम है और भिन्न भी है। तो यही तत्व को प्रभु जो आए थे वो स्टैब्लिश किए। तो उन्होंने फिर सिर्फ ओम जो है, जो प्रणव है, उसमें जो ओम है वो भगवान है, तो ऐसा बोलेंगे उसमें में। तो जैसे भी जो भी मंत्र है, जो सारी देवी देवताओं के पूजा हेतु जो मंत्र बोले जाते हैं, सभी भगवान के जो मंत्र हैं वो सभी ओम से शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि ओम जो है ओम तो भगवान ही है, तो बोल रहे हैं कि वो ही मैं हूँ। फिर वैदिक मंत्र और जो जो सारे वैदिक मंत्र हैं वो उनसे ही ओम से ही शुरू होते हैं, क्योंकि ओम ही भगवान का स्वरूप है। एंड द साउंड इन द ईथर, जो शब्द है, जो हम शब्द सुन रहे हैं, जो भी शब्द करने की जो शक्ति है और जब शब्द जो सुनने की जो शक्ति है वो सब भगवान ही देते हैं। और ये पहला जो जैसे सृष्टि हुआ तो एक शब्द हुआ, तो शब्द प्रोसेस में हम सुनते आ रहे हैं। जो ये हमारा डिसिप्लिन सेक्शन वो क्या है? वो शब्द प्रोसेस है। वो कहाँ से शुरू होता है? भगवान से शुरू होता है। वो शब्द जो है वो भगवान से शुरू होता है। मतलब वो आध्यात्मिक भौतिक जो भी हमको सुनने को मिलता है वो सारे भगवान से ही शुरू होते हैं। भगवान ही वो जो शब्द का जो सृष्टि है वो भगवान ही कर रहे हैं। तो उन शब्द जो हम सुन रहे हैं उसी से हमको ये भगवान का अनुभव करना चाहिए कि वो वही भगवान है। एंड एबिलिटी ऑफ ए मैन, जो एबिलिटी क्या है? मतलब जो कार्य करने की जो क्षमता है। जैसे कोई जो भी कार्य करता है, जो भी फिजिकल वर्क हो, मेंटल वर्क हो, जो भी कार्य वो करता है, तो वो जो कार्य करने की जो क्षमता है वही भगवान है। जैसे कोई उसका एग्जांपल लेते हैं, जो मोहम्मद अली था, बहुत बड़ा बक्सर था। तो कोई अगर ऐसे ही शक्तिमान है, बहुत शारीरिक बल बहुत है और मेंटल बहुत बहुत है, तो वो क्या समझेगा? मैंने बहुत एक्सरसाइज किया, मैंने ये खाया वो खाया, मैंने डिसिप्लिन लाइफ जिया, ये जिया वो जिया, जाके मुझ में ये शक्ति आई। लेकिन वो शक्ति कहाँ से आया? वो शक्ति ऐसे ही नहीं आया, वो शक्ति भगवान से आया। अच्छा, जो भी अभी शक्तिशाली है, कुछ कुछ दिन बाद फिर वो कहाँ चला जाता है? जैसे वो मोहम्मद अली था, बॉक्सर था, मतलब सबको पूरा टॉप रैंक कुछ था वो, तो
उसमें अभी क्या हुआ, अभी उसका जब उम्र हो गया तो अभी वो एक जो पानी का ग्लास है, जो एक चाय का कप है, उसको उठाने की शक्ति उसमें नहीं रही। तो कहाँ गया वो शक्ति, कहाँ से आया था, कहाँ गया? तो वही बोल रहे हैं कि वो भगवान से आया था। तो उसको अभी पार्किंसन कुछ डिजीज हुआ है, तो अभी वो ही इज वर्किंग विद अदर्स हेल्प। तो ऐसा हो गया। तो क्यों ऐसा हो गया? तो अगर वो शक्ति तो उसके अंदर था तो वही रहता ना, चिरंतन के लिए रहता नहीं। ये सब भगवान से ही आते हैं। तो भगवान का जो प्रकाश है वो कुछ देर तक उनकी कृपा बस होके किसी के ऊपर किसी स्वीकृति से उनको ये सब कुछ देर के लिए मिलता है, लेकिन अनलिमिटेड तक नहीं मिलेगा, इटरनल नहीं मिलेगा। तो इस इटरनल केवल वही है जो भगवान है, जो परम शक्तिशाली है, सदैव है और सदैव हैं और रहेंगे। तो उन्हीं से ही कुछ शक्ति कुछ देर के लिए कुछ को लिमिटेड अमाउंट में कुछ मिलता है। तो जो बोला कि मैं बहुत पंडित हूँ, मैं कुछ सब मुझे आता है, मैं सब स्मरण शक्ति मेरा, मैं एक बार पढ़ता हूँ सब याद रख लेता हूँ, सब बता सकता हूँ, ये सब चला जाता है, इससे कुछ नहीं रहता है। ये सब भगवान से ही आते हैं और कृपा करके कुछ दिन तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर तो शक्ति तो उनका नहीं है ना, ओरिजिनली तो भगवान का है। कुछ देर के लिए भगवान कृपा करके कुछ शक्ति उनको दिए, तो वो जो शक्ति है, जैसे हम मान लेते वो बहुत शक्तिशाली है, तो उस वहीं पे भगवान का हमको स्मरण होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि वो जो शक्ति उसको मिला है वो भगवान ही है। भगवान कृपा करके अपना शक्ति उनको दिए, तो शक्ति का विस्तार है वो। तो इसमें जैसे ही पांडित्य है, स्मरण शक्ति है, जो भी है, जो विज्ञान है, जो विज्ञानी है, तो उनका जो ज्ञान आहरण करने की जो क्षमता है, जो ज्ञान को प्रकाशित करने की जो क्षमता है, तो वो क्या है, वो भगवान से ही आते हैं। तो वहीं पर हमको भगवान का ही अनुभव करना चाहिए, ये भगवान का शक्ति उनमें प्रकाशित हुआ है थोड़ी देर के लिए। तो ये हो गया हमारा 8वां श्लोक। तो यथाशक्ति यथामति हमने अपने समझ बूझ के जो हमने सुना है गुरु वैष्णव से, तो हमने उनको आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। तो उसके बाद ये तो टाइम हो गया है, तो अभी थोड़ा सा, जैसे आज बहुत ही पावन पवित्र दिन है, तो भगवान ने बहुत कृपावश होके ये जो गोवर्धन लीला रूपी लीला हमको ये जीव जगत के लिए छोड़ के गए हैं। तो भगवान जब इस धराधाम में आए थे, तो गिरिराज जी के साथ और गोप बालकों के साथ, ब्रजजनों के साथ जो लीला किए हैं, तो उसमें से बहुत प्रमुख लीला है जो गोवर्धन धारण लीला। तो समय तो लिमिटेड है, तो इसलिए हम शुरू करेंगे अभी गोवर्धन लीला थोड़ा सा हम डिस्कस करने के लिए। हरे कृष्णा। Am I audible? Is there an issue with my audio or it is okay? नहीं प्रभु जी, it's loud and clear. Okay. Thank you. तो गोवर्धन लीला के शुरू करने से पहले हम अभी एक श्लोक में अभी गोवर्धन जी का प्रणाम मंत्र गाएंगे, जो कि ब्रजजनों ने जब ये जो लीला चल रहा था, तो उन्होंने कैसे क्या मंत्र से उनको प्रणाम किया है। तो ऐसा ही एक जो मंत्र है, तो मैं पहले, ये तो श्लोक में डिस्कशन में आएंगे, तो मैं शुरू करने से पहले ही वो मंत्र कह लेता हूँ। तो आप अगर सभी उसको रेफर भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 10वां जो स्कंद है, उसका 24वां अध्याय है। 24वां अध्याय का 36 श्लोक है, 10.24.36। तो ऐसे ही वो गिरिराज जी को जो ब्रजजन है, तो उससे कैसे उनको प्रणाम किए हैं, तो क्या मंत्र बोल के प्रणाम किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आज के दिन के लिए वो मंत्र है। तो मैं वो प्रणाम मंत्र गा रहा था। आप चाहें तो उनको गूगल में भी साइड बाय साइड उनको ये कर सकते हैं। 10.24.36। तस्मै नमो ब्रजजने सह चक्र आत्मना आत्मने अह पश्यत् शैल असौ रूपी न अनुग्रहं व्यधात्। फिर से मंत्र का उच्चारण। तस्मै नमो ब्रजजने सह चक्र आत्मना आत्मने अह पश्यत् शैल असौ रूपी अनुग्रह व्यधात्। तो ब्रजवासी कैसे वो प्रणाम किए, तो क्या बोल के प्रणाम करते हैं।
कि भगवान श्री कृष्ण और अन्य जो ब्रजजन थे मिलके भगवान को जो गिरिराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि गिरिराज स्वयं प्रकटित होके हमको कृपा किए हैं। देखो ये जो गिरिराज हैं पश्यत, जो हमको ये हम हमारे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ प्रकटित हुए हैं। तो कृष्ण भी वहां पर उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो ब्रजजन के साथ मिलके जो कृष्ण भी उनको यही श्लोक बोल के उनको प्रणाम कर रहे हैं। तस्मै नमः ब्रजजने सह चक्र आत्मनात्मने अपश्यत शैल स्वरूपी अनुग्रह वेदात। तो ये हो गया, हम प्रणाम कर लिए। अभी फिर हम चलेंगे गोवर्धन लीला की ओर, तो बहुत ही कम समय में। तो गोवर्धन जी जो हैं, जो गिरिराज हैं, तो कैसे वो प्रकट होते हैं इस धराधाम में, तो उनका आगमन से पहले का बात हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो थे अपने जो गोलोक वृंदावन में, तो जब वो ब्रज लीला करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, तो खाली आएंगे नहीं, तो अकेले तो आएंगे नहीं। तो बोले श्रीमती राधा रानी को बोल रहे हैं कि चलिए अभी अब थोड़ा ब्रज लीला करेंगे, तो वहां पे आपको भी जाना है, मैं भी जा रहा हूँ, तो वहां पे ब्रज लीला होगा, तो वहां पे हम सब मिलके कुछ देर तक वहां पे लीला चलेगा, हमारा आध्यात्मिक लीला है। तो राधा रानी बोलती है नहीं 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 नहीं, ऐसे तो हम नहीं जाएंगे। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम। Sir, we are discussed भगवद गीता 7.8। तो अभी आज जैसे गोवर्धन लीला का दिन है, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा टाइम के लिए 15-20 मिनट हम गोवर्धन लीला के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप आए हैं तो सर यू कैन टेक सर, विल हियर सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो राधा रानी बोलती है कि नहीं, हम तो अकेले नहीं जाएंगे, हम वहां पर तो गिरिराज जी नहीं है, जमुना जी नहीं है, तो ये सब अगर पहले वहां पे जाएंगे तो फिर हम वहां पे जाएंगे। तो ठीक है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तो पहले गिरिराज जी को वहां पे प्रकट कराते हैं, फिर जमुना जी को प्रकट कराते हैं, तब जाके राधा रानी मानती है ठीक है हम वहां पे ब्रजलीला करने के लिए आएंगे। तो फिर वो ऐसे ही क्रम में तो गोवर्धन जी को भगवान वहां पे उनके आने से पहले ही वहां पे प्रकट कराते हैं। तो और एक ये तो एक ये हो गया। फिर दूसरा जो है, तो सत्ययुग में क्या हुआ था, जो पुलस्त ऋषि थे, तो वो तपस्या करना चाहते थे। तपस्या करने के लिए उनको एक बहुत ही अच्छा, मतलब जो पर्वत है जिसमें गुफाएं होंगी, जो फल फूल के वृक्ष होंगे, जो परिवेश एकदम शांतिमय होगा, वातावरण सही होगा, तो वहां पे वो बैठ के तपस्या करने के लिए एकांत में वो अपना ऐसा सोचे। तो वो क्या किए, तो जो पर्वतों के जो पिता हैं, तो ऐसा माना गया है, द्रोणचल्य जो है वो पर्वतों के पिता हैं। तो वो उनके पास गए कि मुझे एक ऐसा ही एक पर्वत दीजिए जिसमें मैं जो गुफाएं होंगी, ऐसा जो उनका जो भी ये था, मनोविश था कि ऐसा ही मैं पर्वत है, तो उनमें बैठ के मैं अपना जो भजन भक्ति है, जो तपस्या है, वो करना चाहता हूँ। तो उनके एक जो द्रोणाचार्य का एक जो पुत्र थे, वो थे हरिदास वर्य। तो वो जो हरिदास वर्य हैं, तो ये गिरिराज जी हैं, मतलब जैसे वो पर्वतों के राजा हैं, तो उनके पुत्र हैं हरिदास वर्य, तो वही गोवर्धन है। तो उनको फिर वो जो पुलस्त ऋषि थे, तो उनको द्रोणाचार्य जो है, जो इनको देना नहीं चाहते थे, लेकिन जो पुलस्त ऋषि थे, तो उनको वही, मतलब वही गोवर्धन को देखे, तो उनको बोले कि नहीं, मैं तो यही पर्वत मुझे चाहिए तपस्या करने के लिए। फिर वो बोले कि अच्छा, मतलब वो देना नहीं चाहते, लेकिन ऋषि हैं तो उनको तो संतुष्ट करना पड़ेगा, द्वार पर आए हैं, तो ठीक है, फिर उनको दे दिए। लेकिन ये जो गोवर्धन जी है, तो उनको एक शर्त रखे कि ठीक है, मैं तो आपके साथ जाने के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोले कि क्या शर्त है, कि अगर आप मुझे जहाँ पे ले जाना चाहते हैं, अगर बीच पूरा ले जाके वहां पे रख दीजिए, अगर बीच में आप कहीं पे रोक रख दिए मुझे, तो फिर मैं और नहीं उठूंगा फिर।
फिर आप मुझे नहीं जा सकते, मैं वहीं पे रहूंगा। तो ठीक है, वो तो पुलस्त्य ऋषि थे, तो बोले कि ठीक है, मैं तो लेके चला जाऊंगा, वो बीच में रखूंगा क्यों। फिर वो लेके चल दिए। तो जा रहे थे, जा रहे थे, जैसे ही ब्रज के ऊपर से वो जा रहे थे लेके, तो जो गिरिराज जी थे, तो उनको तो वहीं पे रुकने का, वहीं पे रहने का, ब्रज में वास करने का उनका मन हुआ। फिर वो लीला ऐसा हुआ कि जो पुलस्त्य ऋषि थे उनको नेचर कल आया। फिर बोले कि वो अभी भी बहुत डिस्टेंस बाकी है, तो बोले कि इनको यहीं पे रख देता हूँ, फिर जाके अपना जो नित्य कर्म है वो करके फिर से उठा के वहां पे चल जाऊंगा, मेरा जहाँ पे जाना है। फिर वहां पे रख के जो फिर गए, फिर जो वापस आए, तो फिर से उठा रहे हैं गिरिराज जी को, तो वो फिर से नहीं उठे। बोले अरे आप चलिए, मेरे साथ आप बात हुआ था, मैं लेके जाऊंगा। तो बोले आपको भूल रहे, मेरा शर्त आप भूल गए कि क्या, कि आप मुझे जहाँ पे रखेंगे तो मैं और वहां से फिर नहीं जाऊंगा। फिर उनको, वो पूरे ऋषि थे ना, तो उनको पता चल गया कि ये ब्रज में रहना चाहते, तो उनको फिर अभिशाप दे दिए। मतलब जैसे अभिशाप है वो भी वरदान ही है ऋषियों का, तो ऋषि मुनियों का जो भक्त हैं, कि आप सरसों के भांति आप मतलब नीचे जाएंगे, तब मतलब दब जाएंगे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ऐसा उनको मतलब उनका अभिशाप नहीं बोल सकते, ऐसा उनको वो दे दिए। फिर ठीक है, तो ब्रज में ही रहे। तो ये हो गया, ब्रज में कैसे रहे, तो ये जो प्राकृत्य का जो है ब्रज में प्रकट होने का, दो तरह से हम ये इसके माध्यम से जो हमने सुना था वो आपने प्रस्तुत किया है। फिर देखिए, वो जो गिरिराज जी तो कौन है, तो जो है, तो उनको भगवान के भक्त हैं। हरिदास वर्य जो है भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो गिरिराज जी जो वो भगवान का स्वरूप ही है। तो ये मतलब दोनों तरफ से उनको पूजा जाता है। वो भगवान का स्वरूप है, भगवान का प्रकाश है, और वो भगवान के भक्त भी हैं। तो इसी क्रम में चल के हमको उनको ऐसे मतलब ध्यान में ऐसा रहना चाहिए, गिरिराज जी जो हैं वो भगवान के ही रूप हैं, भगवान का स्वरूप है, और भगवान के भक्त भी हैं। तो भगवान जो है भक्त वत्सल है। तो जो गिरिराज जी का जो पूजा होता है, तो जैसा बोला है कि मेरे मेरे पूजा से मेरे भक्त का पूजा बड़ा बड़ा करके करो, ऐसा वो बोले थे। तो इसलिए उनका गिरिराज जी का जो है हम सभी वंदना करते हैं, सभी पूजा करते हैं, उनका जो विधि है वो करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सब आप जानते हैं कि भगवान ने जो 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया था, ये क्या था, तो ये जो लीला है, ये गिरिराज जी का जो पूजा है, तो वो कैसे शुरू होता है। 24वें अध्याय में, दसम स्कंद का 24वें अध्याय में, तो भगवान यहाँ जो सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं, तो उसमें वो बता रहे हैं, शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ब्रज में जो क्या हुआ था, जो भगवान जब थे धराधाम में, तो ब्रज में थे, तो वहां पे क्या हुआ था, जो हर साल वो लोग देवता आदि को पूजा करते हैं, तो इंद्र देव को भी पूजा करते थे जो बारिश के लिए। तो भगवान जो इंद्रदेव है प्रसन्न होंगे तो बारिश देंगे, तो बारिश जो है पृथ्वी जो है सस्य श्यामला होगी, तो वहां से हम सस्य की जो है ये जो है हम उपार्जन करेंगे, फिर उससे हम अपना जो जीवन निर्वाह करेंगे। तो ठीक है, तो लेकिन जैसे भगवान एक दिन क्या हुआ, जो इंद्रदेव का जो पूजा होता है वही तिथि आ गया, तो फिर सब बैठ के उसके आयोजन करने लगे सभी जगह। उनका जो है वो जैसे हम कोई फेस्टिवल करते हैं तो उससे पहले मीटिंग करते हैं, कौन कौन क्या सेवा करेगा, कैसे कैसे सेवा होगा, क्या प्रसाद बनेगा, क्या ऐसे सब वो बैठ के वो चर्चा कर रहे थे। तो अभी कृष्ण वहां से आए, तो देखे कि बहुत बड़ी सभा बैठी है ब्रज में। तो उनके राजा तो है नंद राजा, नंद महाराज है उनका, मतलब वो अध्यक्षता कर रहे थे। तो फिर नंद महाराज के गोद में जाके बैठ गए, तो बोले कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बोले कि हम अभी इंद्रदेव का पूजा हुआ था उसके लिए प्रस्तुति करना है, तो हम लोग ये सब आलोचना कर रहे हैं। तो बोला अरे इंद्रदेव को क्यों आप पूजा करना चाहते हो, तो क्योंकि वो वर्षा देते हैं, वर्षा से हमको भूमि से सस्य श्यामला होती है, हमको जो है सस्य उत्पन्न होता है, तो सस्य से हमको जीवन निर्वाह करते हैं। फिर नहीं नहीं, वो तो फिर ये तो बहुत विस्तार से है, मैं तो जितना जानता उतना ही बोलूंगा कि जो ठीक है, तो लेकिन ये जो इंद्र जो कर रहे हैं, तो इनका तो ये काम है,
इसका तो कोई इंद्र जो है जो कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, तो इनका ये काम है, तो इनका जो भगवान से उनको जो शक्ति मिलती है, उनको जो कार्य दिया गया है उससे उसे करते हैं। अच्छा, आप लोग यज्ञ करते हो, उनको सभी चढ़ावा चढ़ाते हो, लेकिन ये समंदर में है, समंदर में भी तो बारिश होता है, तो वो क्या जगह करते हैं क्या? वो तो कुछ नहीं करते, तो उनका तो काम है बारिश करना, इसलिए वो एक बारिश करेंगे, उनको कोई अलग से ये करने का जरूरत नहीं है। फिर वो उनको बहुत सारे श्लोकों में कर्म का सिद्धांत बताते हैं, आप कर्म करिए, जैसा गीता में बताएं ऐसा ही ब्रजवासियों को छोटे से 7 साल के, वो तभी जो लीला हो रही थी तब जो ठाकुर जी थे तो 7 साल के हो गए थे, तो 7 साल का बालक जो है वो बता रहे हैं, तो सारे ब्रजवासी सुन रहे हैं, तो वो कर्म के बारे में बहुत सारे श्लोकों में वो कर्म के विधि के बारे में, जैसे आपको कर्म करिए तो कर्म का फल जो है उसके स्वरूप आपको जो है आपको ये प्राप्त होगा, आप अगर कर्म नहीं करेंगे तो क्या, ये सब जो जैसे गीता में बोले हैं कर्म शतक में, ऐसा ही लाइन्स उनको भी कितने बहुत सारे श्लोकों में समझा रहे हैं। फिर बोले आप उनकी पूजा क्यों करते हो? आप तो गिरिराज की पूजा करना चाहिए, क्योंकि उससे ही आप सबको प्राप्त होता है। आपका जो गोधन है वहीं पे जाके जो घास है जो ये है उनको खाते हैं तो दूध देते हैं। आपका तो जो मेन बिजनेस है वो जो है दूध दही माखन ये सब उनसे ही प्राप्त होता है, गोधन से प्राप्त है। गोधन तो वहीं पे गिरिराज ही उनको पुष्ट कर रहे हैं। तो ऐसा उनको समझा दी कि आपको अगर पूजा करना है तो आप गिरिराज जी की पूजा करिए, उनसे ही आपको सब प्राप्त होता है, पूजा करिए। अच्छा, आप जो इंद्रदेव को जो भोग लगाते हैं वो क्या खाते हैं आके? आपने देखा है इंद्रदेव को? नहीं नहीं। चलिए, मैं आप गिरिराज जी को अगर भोग लगाएंगे तो वो तो सादर ग्रहण करते हैं, वो तो उनको ग्रहण करेंगे, उसको आप देख सकते हैं उनको। ऐसा है क्या? तो छोटे से जो 7 साल के ठाकुर जी थे तो उनके बाद जो है सारे ब्रजवासी मान गए। तो ऐसे ही नहीं माने उनको, वो मतलब ये नहीं किए, उपेक्षा नहीं किए कि अरे नहीं ये तो छोटा बालक है, ये क्या बोलेगा, इसका बात हम नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, वो पहले वो देखिए जो गोवर्धन लीला है वो 7 साल के हो चुके थे, तो उनका कितना जो है उसके पहले लीलाएं हो चुका था, इसलिए उन जो ब्रजवासी थे उनको भगवान कृष्ण के ऊपर अटूट भरोसा हो चुका था, वो भरोसा जीत चुके थे। उससे पहले क्या हुआ था, पूतना 6 दिन में आया था, सकट भंजन लीला, तृणावर, उत्खल बंधन, जामला अर्जुन उद्धार, ये सब ब्रजवासियों के आंखों के सामने, बत्सासुर, बकासुर, अघासुर, फिर ब्रह्मा विमोहन लीला भी वो हो चुका था, वो तो 3 साल में ही हो गया था। फिर धेनुकासुर, फिर कालिय, फिर प्रलंबासुर, अग्निदैत्य, ये सब 7 साल से पहले ये सब लीलाएं हो चुके थे। तो बाकी था जो गोवर्धन लीला के बारे में, फिर वो मतलब अब इस टाइम आया, तो इसलिए ब्रजवासी जो थे उनका अटूट भरोसा भगवान कृष्ण के ऊपर छोटे से जो 7 साल के कान्हा के ऊपर भी हो चुका था। तो बोले कि हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो अरे अच्छा, तो गोवर्धन की पूजा करेंगे तो उनका विधि तो हमको पता नहीं है, अब तुम बताओ कैसे तुम्हारे ठाकुर जी का कैसे पूजा होता है। फिर वो विधि बताते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो पूजा की विधि जो है वो 31 से दसम स्कंद के 24वें अध्याय का 31 से 38 तक वो भगवान बताते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे यज्ञ करना है, कैसे कैसे प्रसाद रेडी करना है, क्या क्या है, कहाँ पे लेके जाना है, कैसे उनकी स्तुति करना है, ये सब पूजा की जो विधियां हैं। तो ये तो ब्रजवासी तो नहीं जानते, तो पहले तो वो किए नहीं, तो कृष्ण बता रहे हैं, पहले ही वो इनिशिएट कर रहे हैं कि कैसे करना है। तो वो बता रहे जैसे जैसे वो बताए, फिर ब्रजवासी ने ऐसे ही सारे जो द्रव्य है उसको प्रस्तुत किए। तो प्रस्तुत करके फिर जो है वो भगवान गिरिजा जी के सामने लेते हैं, और फिर लेकर उनका फिर जो यज्ञ है, आहुति है, जो जैसे ही भगवान बताए तो ऐसे ही वो सब करते हैं। तो जैसे ही वो करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, गिरिराज में वो समा जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो सारे जो वस्तुएं है, जो भोग का जो प्रस्तुति उन्होंने किए है ब्रजवासियों ने, तो सारे को वो खुद ले लेते हैं, वो खा लेते हैं पूरा पूरा। और जो उनका स्वरूप है जो प्रकट होता है, जैसे जो मुखार बिंद है, भगवान की आंखें हैं, गिरिराज की आंखें हैं, मुखार बिंद है, इनका सब है, नासा है, सब वो ब्रजवासी जो है वो दर्शन कर रहे हैं। फिर कोई कोई ब्रजवासी एक दूसरे से बता रहे हैं, अरे ये तो हमारे देखो, ये जो गिरिराज जी है, गोवर्धन है, ये तो हमारे कान्हा का जैसा दिख रहा है। तो इसका आंख देखो, कान्हा का आंख देखो, इसका नाक देखो, कान्हा का आंख देखो, ऐसा मतलब ऐसा ही पूरा मतलब सिमिलर वो दर्शन कर रहे हैं। तो वही भगवान जो है वो गिरिराज जी के रूप में वो सारे जो है वो चढ़ावा जो है वो ले लेते हैं। फिर बोलते कि और लाइए, फिर और जो है पूरा जूस का जो है जैसे तालाब जैसा वो
पूरा बनाए हैं। फिर ये जो सस्य है, जो अन्नकूट महोत्सव जो बोलते हैं, वो जो पूजा की जो विधि भगवान वहाँ पे बताए हैं, जो अन्नकूट महोत्सव उसको बोलते हैं। तो अन्न का पूरा पहाड़ उनके पास लगे, वो तो गिरिराज है, वो तो पर्वत रूप में है। तो उनके लिए ये जो चढ़ावा जो हम प्रस्तुत करेंगे, जो परवासी जो प्रस्तुत करते थे, तो उनको वो सारे को ग्रहण कर लेते। तो उनको कितना जो पहाड़ जो है उनके पास कितना भोग लगाना पड़ेगा जाके फिर वो कंप्लीट होगा। मतलब उनके पास रखेंगे तो कुछ तो दिखेगा, जैसे कोई हम सरसों का एक दाना रखेंगे तो उनको जो भोग ले रहा है तो उनको कैसा लगेगा। तो इसलिए बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो अन्नकूट महोत्सव उसको बोलते हैं, जो आज भी हमारे वैष्णव समाज में उसको अन्नकूट महोत्सव बोलते हैं। तो सारे जो हमारे इस्कॉन के जो केंद्र हैं उसमें आज वो बहुत ही बड़े उत्साह से, उल्लास से, बड़ा आयोजन से वहाँ होगा। इस्कॉन हमारा जो भुवनेश्वर का अटल करके जो फार्म है, वहाँ पे बहुत बड़ा आकार से वो पूजा होता है। अन्न का एक पूरा पहाड़ जैसा बनाते हैं, फिर आगे के बहुत सारे व्यंजन, हजारों व्यंजन उनके सामने रखे जाते हैं और उनको जैसे उनको गिरिराज जी को ऑफरिंग करते हैं। तो अन्नकूट महोत्सव बोलते हैं। जैसा भगवान ने जो विधि बताया उसी विधि के अनुसार ये जो उत्सव है, गिरिराज जी का पूजा जो विधि बताया उनके हिसाब से वो किया जाता है। फिर वो तो पूजा सब किए, तो ऐसा ऐसे बोल के सारे जो पूजा विधि भगवान जो बता रहे हैं तो वैसे ही कह रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं, जो गाय थे उनको सब जो सारे जो उनको भी संतुष्ट करना है ना। भगवान जो है गो ब्राह्मण हिताय च, तो वो सब सारे किए। तो ब्राह्मण जो थे वो स्वस्ति वाचन किए। स्वस्ति न इंद्रो, स्वस्ति जो भी सुनते हैं हम, जो स्वस्ति वाचन है बहुत पुण्य फलदायी होता है। तो जो ब्राह्मण थे वो स्वस्ति वाचन किए। तो जो भी वो प्रस्तुत किए थे इंद्र, भगवान इंद्र के पूजा के लिए, वो सारे वो इधर लाके गिरिराज जी को प्रदान किए। जो गाय थे उनको सारे जो घास थे, जो अच्छे अच्छे फ्रेश घास थे, तो उनको खाने को दिया गया। अच्छे अच्छे व्यंजन उनको दिया गया, जो फिर गाय को संतुष्ट किया गया। तो जो गोपी जो वहां पर गए थे पूजा करने के लिए, तो अच्छे अच्छे वस्त्र सब पहन के गए थे। और जो ब्राह्मण थे उनको जो वहां पे जो सम्मिलित हुए थे, तो सारे आशीर्वाद कर रहे थे। मतलब पूरा जो वातावरण था वो आध्यात्मिक अलौकिक परिवेश वहां पे हो गया था। तो ऐसे ही करके तो वो क्या किए, मतलब पूजा तो किए, होम किए, उनको सारे ऑफरिंग किए। फिर गोवर्धन जी का वो परिक्रमा किए। गोधनानी परिष्कृत गिरिं शुक्र प्रदक्षिणम, मतलब सब जो है गोवर्धन जी के वो परिक्रमा प्रदक्षिण किए, परिक्रमा लगाए। तो भगवान भी उसमें शामिल थे। तो इसलिए आज के जो हम परिक्रमा इधर लगाते हैं, गोवर्धन जी को जाते हैं तो गिरिराज को जाते हैं तो परिक्रमा लगाते हैं। तो ये परिक्रमा करने का जो विधि है वो भगवान खुद जो किए थे, वहीं से वो शुरू किए थे। इसलिए हम लोग भी गिरिराज जी का जो है अभी परिक्रमा, लेकिन अभी का परिक्रमा, उनका परिक्रमा जो है वो बहुत ही अलग है। तो उनका जो गिरिराज जी का जो स्वरूप था, तो वो बहुत ही बड़ा विस्तार रूप से था, 100 किलोमीटर के करीब, इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अभी जो है 22 किलोमीटर का है, तो उसको हम कर लेते हैं जो ये है। लेकिन जो गिरिराज जी का जो परिक्रमा है, तो वहीं से भगवान ही ये जो विधि है उनको वो शुरू किए हैं। तो भगवान जो है वो उनका जो विश्वास, जो ब्रजवासी है उनका मन में विश्वास लाने के लिए तो गोवर्धन का रूप में वो प्रकट हो गए। और फिर वो सारे जो नैवेद्य थे उनको वो ले लिए। फिर सारे जो मैं जो बोला था पहले ही बोल दिया था, जो 36 जो है तो 10.24.30, तो उसमें वो सारे कृष्ण भी वहां पे शामिल हो गए वहां पे। फिर वहां पे जाके भगवान जो गिरिराज जी को सब प्रणाम किए, जो सारे ब्रजवासी मिलके। ऐसे ही करके फिर वो सारे जो गायों को लेकर फिर वहां पे प्रणाम किए, फिर चले आए। फिर ब्रज को रिटर्न कर गए थे, अपने अपने घर में चले गए। फिर क्या होता है, जो इंद्र जो थे, तो ये जो उनको जो आहुति होता है, जो यज्ञ में उनको जो अर्पण होता है वो नहीं हुआ। तो उनको भी ये पता चल गया कि ये कुछ तो प्रॉब्लम है, कि यहाँ पे कुछ मुझको जो ऑफरिंग होता है, जो चढ़ावा होता है, जो मुझको अर्पण करते हैं, कुछ भी नहीं किए। तो ऐसा उनको जैसे पता चल गया, तो फिर वो उनके जो अनुचर थे तो उनको बताया कि क्या हो रहा है, वो लोग क्यों आज तो अब मेरा तो पूजा का समय है जो है अभी हो गया है, तो ब्रजवासी क्यों ऐसा पूजा, तो क्या उनमें देरी क्या हो रहा है, क्यों पूजा नहीं किए। तो फिर उनके अनुचर जाके बताते हैं नहीं नहीं, वो लोग तो अब की बार पूजा नहीं करेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगे, कि वो एक छोटा सा बालक है, कृष्ण नाम का एक बालक है,
तो वो उनको सभी जो ब्रजवासी हैं तो उनको बालक के बातों में आकर वो आपके पूजा के अलावा छोड़ के फिर वो एक पर्वत को पूजा कर रहे हैं, जो गोवर्धन पर्वत वो ब्रज में है, तो उसको पूजा कर रहे हैं। तो बोले कि अरे ऐसा कैसे होता है, ये असंभव है। नहीं नहीं, ऐसा ही हुआ है। छोटे से बालक के कहावे में ये सारे जो है जो वृद्ध है, जो वरिष्ठ है, वो लोग भी आ गए। तो वो सब मेरे पूजा छोड़ के वो एक मिट्टी का ढेर है जो पर्वत है उनका पूजा कर रहे हैं वो लोग। तो बोले हाँ। तो फिर उनको जो इंद्र जो थे वो बहुत ही गर्वान्वित हो गए थे। तो ये जो है भगवान के जो सार बोल रहे थे कि जो भगवान जो एक ही लीला करते हैं तो उसमें 4-5 जो है उद्देश्य उनका वो पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे जो गिरिराज जी का जो पूजा हुआ उसमें जो इंद्र जो क्रोधित हुए उसमें क्या है, उनके पास जो शक्तियां थी तो फिर वो ब्रज के ऊपर वो बिना कुछ समझे ही मतलब अपने गर्व से वो बहुत ही मतलब उनका जो बुद्धि है, जो स्मरण शक्ति है वो चला जाता है। तो फिर वो उसी प्रकार से प्रभावित हो गए और फिर ब्रज को जो है अपने जो अनुचर थे तो उनको बोल रहे हैं कि आप वहां पे ब्रज में प्रलय लाइए। उनको सब है ऐसा जो मेरा क्रोध का शिकार अभी ब्रज होगा तो वहां पे देखेंगे कि वो भगवान इंद्र अगर प्रसन्न नहीं है तो उनको क्या नतीजा भोगना पड़ रहा है। तो ऐसा करके वो अपना जो संवर्धक जो है प्रलय में जो बारिश होता है, जो बारिश जो होता है हम लोग देखते हैं ना 100 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर ऐसा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया इसलिए बहुत पानी बढ़ गया। तो उनका जो मिलीमीटर वो मेजरमेंट में नहीं है, वो तो पिलर जैसा जो है, जैसे बहुत बड़ा एक पाइप से जो पानी जो डालते हैं बहुत बड़ा पाइप से, ऐसे ही धार का जो धार है अमल के बहुत छोटे छोटे धार हमको मिलता है जो बारिश होता है। तो उनका जो बारिश का जो ये था वो बहुत ही मोटा था। तो उसी आकार से वो बारिश हो रहा था उनका जो प्रलय में समय जो बारिश होता है। और जो आंधी तूफान है, जो पवन का जो गति है हम लोग जो ये देख रहे हैं उससे कहीं करोड़ गुना ज्यादा वो तूफान का जो शक्ति है, जो गति है। और वो जो मूसलाधार जो वर्षा है, संवर्तक जो प्रलय के समय होता है, जो वो अगर होगा तो प्रलय ही होगा। कोई जीव जंतु, कोई पेड़ पौधा, कोई नहीं, जीव कोई नहीं बचेगा अगर वो बारिश होगा तो ऐसे ही वो संवर्तक जो है उनको बोलते हैं कि जाओ ब्रज में उसको पूरा मतलब नष्ट कर दो। जैसे नष्ट मतलब जो जो ब्रजवासी है, अगर बारिश होगा, अगर आंधी तूफान होगा, प्रलय हो जहाँ पे होगा वो क्या होगा, कोई भी जीव जंतु नहीं बचेगा। तो ब्रज को पूरा नष्ट कर दो। तो ऐसा बोल के वो ऐसा ही शुरू कर दिए वहां पे। जैसे ही वो खत्म हो घर से गए फिर उसके बाद तुरंत ही ये सब शुरू हो गया है। अभी 8:01 हो गया है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इट विल कोऑपरेट। सबको मैं यही निवेदन है कि अगर टाइम थोड़ा हो गया तो ये कंप्लीट हम जल्दी से करेंगे। हरे कृष्णा। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर ये जो गोवर्धन धारण का जो लीला है वो 25वां अध्याय में इसका वर्णन आता है। तो 24 में तो पूजा सब कर लिए, इंद्र का पूजा नहीं किए, गिरिराज का पूजा अच्छे से कर लिए। फिर 25 में गोवर्धन धारण लीला जो है उस प्रारंभ होता है। फिर वहां से क्या होता है, जो बारिश करते हैं तो प्रलय आता है वहां पे। फिर सारे जो है जैसे ही आना शुरू होता है तो सारे जो ब्रजवासी है वो उनको समझ में आ जाता है कि देखिए हमने ये पूजा नहीं किया, ये कृष्ण का बात मान के हमने उनका जो पूजा है उनको भी पूजा कर लेते, गिरिराज की भी कर लेते। ऐसा सब बहुत सारे सजेशंस वहां पे आने लगे। तो उन्होंने फिर सब जाके बोला अरे तुमने बताया कि ये पूजा बंद करने के लिए, देखो क्या हुआ अभी। क्या होगा, अभी कोई नहीं बचेगा अभी इंद्र का प्रकोप से। तो बोले कि अरे जो मेरी बात में आए हैं तो मैं ही बचाऊंगा। तो बोल के वो गए, ठीक है मैं इसका कुछ व्यवस्था करता हूँ। फिर हम जिसका पूजा किए हैं वही हमको बचाएंगे। फिर वो जाके गिरिराज के पास गए। फिर गिरिराज जी को अपने जो बाएं हाथ के छोटी उंगली से फिर उनको पूरा उठा दिए। तो उठाए, फिर उठा के फिर एक चट्टान के ऊपर खड़े हो गए ताकि मतलब जिससे ग्राउंड से जो हाइट है वो बनी रहे। फिर वो जैसे वो उठाए और गिरिराज जी जो थे जैसे ही भगवान ने उनका स्पर्श किया तो जैसे जैसी खूबसूरती, जैसी हरियाली, जैसे ही उनका सौंदर्य था वो बहुत 1000 गुना भी बढ़ गया जैसे गिरिराज जी को भगवान ने धारण किया। तो वहां पर जो पेड़ थे, पुष्प, जो वृक्ष थे
वहां से जो सारे जो पुष्प के जो वृक्ष थे, वो सारे जो फूल थे वो नीचे गिर गए। और ये फिर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, सारे ब्रजवासियों को बुलाते हैं कि आप आइए। तो ब्रजवासियों के आने से पहले क्या है, जो भगवान जो गिरिराज जी को उठाए, तो उनके नीचे का जो वातावरण थे पूरा कंप्लीट वेलकम के लिए, वो स्वागत के लिए प्रस्तुत कर दिए थे। फिर जो ब्रजवासी सब आए वहां पे, सब आके उनके जो गिरिराज जी के नीचे सब आश्रय लिए। तो बारिश तो बहुत होता रहा, फिर चलता रहा। तो ऐसा जो है भगवान जो इंद्र जो ये कर रहे हैं, तो उसका एक ही बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इंद्र जो थे, ये जो भगवान जी को 7 साल हुआ था, फिर 7 साल में ये जो हुआ, जब भगवान जो थे वो माता देवकी के गर्भ में जो आए थे, तो सारे देवता लोग वहां पे गर्भ स्तुति करने के लिए आए थे। सारे देवता, भगवान शिव भी आए थे, ब्रह्मा भी आए थे, ये जो सारे जो देवता गण, इंद्र, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, सभी पवन देव, सभी वहां पे प्रस्तुत हुए थे भगवान के गर्भ स्तुति करने के लिए। वो भी गर्भ स्तुति का जो है वो सेकेंड चैप्टर में 10वां अध्याय का जो सेकेंड चैप्टर है, उसमें ये सारे जो बताए गए हैं। गर्भ स्तुति जो है वहाँ 26 से 41 श्लोक में जो जैसे ही वहां पे प्रस्तुत हो गए, माता जी गर्भ, देवकी गर्भ में जैसे भगवान आ गए थे, तो ये सारे देवता लोग वहां पे प्रकट हो गए थे, भगवान की स्तुति करने लगे। गर्भ स्तुति बोलते हैं उनको। तो 26 से 41 तक, 24 से 41 तक वो बस स्तुतियां ही करने लगे वहां पे भगवान श्री कृष्ण का। तो देखिए, ये तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि देखिए ये जो उसमें इंद्रदेव भी थे, तो इंद्र जो थे वहां पे कितना 7 साल हुआ है, कहाँ पे, मर्त्य में। तो स्वर्ग लोक में वो जो ड्यूरेशन है 7 साल का, जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही वहां पे बहुत कम है, मतलब 7 मिनट भी नहीं हुआ होगा। तो ये जो गर्भ स्तुति जो करने आए थे, फिर ये जो गोवर्धन धारण की लीला है, उसमें भगवान को मर्त्य में 7 साल हुआ था। लेकिन उस वजह से बोलते हैं ना कि जो पितृलोक में हम जो पिंडदान करते हैं 1 साल जो में एक बार करते हैं, लेकिन वो पितृलोक में वो 1 दिन होता है। हमारे 1 साल होता है, पितृलोक में 1 दिन होता है। तो इसलिए हम उनको हर रोज हमको जो है खाना वो देते हैं, उनका जो पिंड दान करते हैं। लेकिन ठीक उसी तरह अगर स्वर्ग लोक में जो ईयर का कैलकुलेशन अगर होगा, तो वहां पे यहाँ पे जो 7 साल है, वहां पे तो 7 मिनट ही हुआ होगा शायद। तो वो 7 मिनट के अंदर जो गर्भ स्तुति करने के लिए इंद्र वहां पे प्रस्तुत थे, वो क्या भूल गए? वो क्या उनको क्या वो जान नहीं पा रहे कि यही स्वयं भगवान है? वो कृष्ण को नहीं जान पा रहे हैं? वो क्योंकि छोटा बच्चा बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो इसका जो है जो गर्भ स्तुति कैसे किए हैं, तो भगवान को कैसे कैसे वो ये किए हैं, तो थोड़ा सा एक श्लोक में मैं हम ये करूंगा जो कि मुख्य श्लोक है। तो नारद मुनि, सारे देवता गण, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब उनको स्तुति करें। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य जोनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नं। मतलब हम आपके शरण में आ रहे हैं, तो आप ही सत्य हैं, आप ही अनादि हैं, आप ही सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपको जानने का उपाय है। सृष्टि के पहले, सृष्टि से पहले, प्रलय के बाद और संसार के जो जब चल रहा है स्थिति के समय में, असत्य, प्रत्येक असत्य अवस्था में आप ही सत्य स्वरूप में विद्यमान है। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सारे जो 5 जो देख रहे हैं हम दृश्यमान सत्य, वो सत्य ही आप ही सत्य हैं। फिर आप ही अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में विराजमान हैं। आप ही दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी हैं, समदृष्टि प्रवर्तक हैं। आप तो साक्षात सत्य स्वरूप हैं। हम आपके शरण में आए। जो जिनके शरण में सारे देवतागण आए थे, इंद्र भी वहां पर उपस्थित थे, तो फिर वो कैसे भूल गए कि यही भगवान है जिनको मैंने 7 मिनट पहले इनका स्तुति किया था। तो ये भगवान की लीला ही है कि भगवान जैसे मतः स्मृति ज्ञान अपन, वो ये लीला जो करना चाहते हैं, तो जो भी वो लीला करना चाहते हैं वो अपने भक्तों के द्वारा ही करना चाहते हैं। तो ऐसे अनुगत है जो भी भक्त है उनके द्वारा। तो उन फिर उद्देश्य ये भी है, और उद्देश्य ये भी है कि जो इंद्र थे उनको बहुत गर्व हो गया था। जो भगवान है, जो
गर्व को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो। अगर भक्तों का तो पर्सनली केयर लेते हैं कि अगर मेरा भक्त जो है इसका ये भाव जो है वो आ रहा है तो मैं इसको तुरंत नष्ट कर दूं, नहीं तो ये इसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही खराब है। तो इसलिए भक्तों को वो जो गर्व में जो आ जाता है तो गर्व नष्ट कर देते हैं। तो इसे गर्व नष्ट भी ये पार्लली जो लीला है तो वो जैसे उनको भुला देते हैं, फिर उनका जो गर्व है उनको नष्ट की जो लीला है ये है गोवर्धन धारण लीला जो हम श्रवण कर रहे हैं। तो वो जो गर्भ स्तुति किए थे, फिर ये जो भूल गए, फिर ये जो संवर्तक को भेज के फिर जो प्रलय का जो भी वायु है उसको भेज के ये सब वहां पे कर रहे हैं। तो फिर वो लोग जो संवर्तक जो थे तो उनको जाके कृष्ण इंद्रदेव को बताते अरे कुछ तो वहां पे ये है कि हमको मैं जितना मतलब मुझ में जितना शक्ति है, मैं अगर वहां पे अभी शुरू किया हूँ लेकिन वहां पे कुछ हो नहीं रहा है, मतलब उनका कोई भी एक तिनका भी उनका प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक। तो बोले कि वहां पे मुझको पता है, मुझको स्मरण है, वहां पर एक तृणावर्त एक शक्तिशाली जो दैत्य था जो कंस ने भेजा था, वो हमारी मेरे तरह ही पूरा पावरफुल था, वो तो स्वर्ग को भी हिला देता था, इसके कितना शक्ति था। तो उनको ये जब ये जो बालक के बारे में बोल रहे, ये तब छोटा था, बहुत 1.5-2 साल का था, तभी उसने उनको वो तृणावर्त को गले को पकड़ के उसका वो वध कर दिया था। तो वो तो छोटा था, अभी तो वो 7 साल का बहुत बड़ा हो गया है, तो कुछ तो इसमें है प्रॉब्लम। तो इंद्र बोलते हैं नहीं नहीं तुम जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ ऐरावत को लेके, और जो वज्र लेके मैं आ रहा हूँ। फिर आके फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये सब तो घमासान जो है बारिश तूफान चल रहा, तेज तूफान चल रहा। फिर भगवान जो है अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली से गोवर्धन को धारण किए हुए हैं। तो सारे जो एक भी ये बात भी ध्यान में सबका आएगा कि अच्छा जो बारिश जो बाहर गोवर्धन के ऊपर तो हो रहा था, फिर बारिश बाहर जो बारिश तो उसके छींटे लगेंगे, उसका जो पानी का प्रवाह है वो अंदर भी आ जाएगा। गोवर्धन का जितना आकार है उनके नीचे जो है बाहर से जो बारिश होता है वो पानी भी अंदर आ जाएगा, तो उससे भी वज्रवासी प्रभावित भी हो सकते थे। नहीं, वो क्या हुआ, जो अनंत शेष थे वो अपना जो एक दीवार जैसा वहां पे बना दिए, तो वो अंदर का बाहर का जो पानी है जो हवा है जो कुछ भी अंदर उसका प्रभाव नहीं रहा। तो जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो पेड़ थे, जो पशु पक्षियां जो भी थे, तो उनका कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब एक तिनका भी उनका इधर उधर का नहीं हो रहा था, वो जो तेज तूफान बारिश हो रहा था। तो इसको देखकर इंद्र बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ रहे थे, अरे मैं इतना ये सब कर रहे, प्रलय का ये हो रहा है, इनके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। फिर वो आकर वो देखे 2-3 दिन 4 दिन के बाद फिर वो आके वो अपना वज्र से गोवर्धन के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। फिर वज्र का भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, ऐसा करते गए करते गए करते गए वो करते रहे। फिर अंदर की जो लीला है वो कैसा चल रहा है कि जो श्री कृष्ण है वो अपने छोटी उंगली से पकड़े रखे हैं, तो सारे जो ब्रजवासी है वो थोड़ा सा पहले से तो भय से आए थे, फिर देखे कि उनका जो प्रभाव है जो बाहर का जो ये है उनका कुछ हो नहीं रहा है। फिर ऐसा काला घना जो बादल था, सूरज का तो कहीं पता ही नहीं था, सूरज तो दिख ही नहीं रहे थे, तो पूरा काला अंधेरा था। लेकिन वो जो गोवर्धन जो धारण किए थे उनका नीचे का जो वातावरण था, नीचे का जो आलोक की जो व्यवस्था थी, भगवान जो कौस्तुभ मणि पहनते थे ना, तो उससे पूरा जो उसका जो ब्रज गोवर्धन पर्वत का नीचे का जो एरिया था पूरा आलोकित था, मतलब वहां पे अंधेरा का नामो निशान नहीं था, पूरा शीतल आलोक वहां पे था। और जो वातावरण था वो बहुत ही मतलब आमोद प्रमोद जैसा हो गया था, उसके अंदर का जो है बहुत ही अच्छा था। फिर जो ब्रजवासी थे तो जसोदा माँ क्या कर रही थी, जसोदा माँ सभी तो भगवान को दर्शन कर रहे हैं तभी, तो जसोदा माँ जो है वो तो ममता का स्वरूप है, तो माँ का हृदय एक अलग तरह से होता है, वो सब एक तरह से सोचेंगे, लेकिन माँ अलग तरह से सोचती है। माँ बोलती है अरे मेरा लड़का जो है इतना 2-3 दिन 4 दिन हो गया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, एक ही हाथ से पकड़े रखा है, कितना उसको दर्द होता होगा। फिर जाके वो कुछ खाया नहीं, उनका मन बहुत दुखी होता है। फिर जो उनके सखागण थे, तो सखागण जो है उन साख्य भाव जो है सखागण जो है उनका जो भगवान के साथ जो आदान प्रदान है, वाक्य का जो भाव का आदान प्रदान करते हैं, तो वो भी अलग अलौकिक तरह से होता है। तो सखागण सब उनके पास चले गए, बोले अरे ये कान्हा ऐसा पकड़ा है, उसको कैसे वो पकड़ा है, हम जो खाते हैं यही खाता है, हम उसके खाना छीन के खा जाते हो, हमारा खाना छीन के खा, फिर वो कैसे इसको पकड़ के रखा है। तो लेते उसको बहुत दर्द होता है, उसका हाथ का थोड़ा
मतलब ये मालिश कर देते हैं, तो ऐसा हाथ को दबा रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं। फिर मधुमंगल जो है उनका एक सखा है, तो बोल रहे नहीं नहीं, अरे ये जो शक्ति है ना, ये जो शक्ति है, ये जो मैं ब्राह्मण हूँ ना, तो ब्राह्मण मेरा जो तेज है, ब्राह्मण का तेज, उसी तेज से ये पकड़े रखा है, तो इसका जो शक्ति मिल रहा है ना, वो उसी तेज से ही शक्ति है। तो वो भगवान कृष्ण बोलते हैं क्या, तो ठीक है, तेज तो है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा छोड़ दूं क्या? तो नहीं 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 नहीं, नहीं पकड़े रखो। जैसे ही थोड़ा सा छोड़, मतलब ढीला किए, तो ऐसा पूरा गोवर्धन हिलने लगा। तो फिर जसोदा माँ बोलती है, अरे मेरे लाल को तो बहुत परेशानी हो रहा होगा, बहुत दर्द होता होगा। फिर माँ जी बोलती है, तो भगवान श्री कृष्ण, नहीं नहीं, मुझे कुछ दर्द नहीं होता है। वो जो, तो भगवान उसको कैसे उठाए, जैसे मशरूम होता है ना, तो उसको उठाने में, उसको आप पकड़े हैं कि नहीं पकड़े हैं पता नहीं चलेगा कुछ देर बाद, इतना हल्का है, इतना सॉफ्ट है, इतना कोमल है। तो ऐसे ही भगवान को, तो वैसा ही गोवर्धन जो है वैसे ही उठाए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं नहीं, मैं तो, मुझे कोई दर्द नहीं होता है, ऐसे ही वो तो ऐसे ही पकड़ा हूँ। तो बोले नहीं नहीं, कैसे दर्द नहीं होता, एक ही उंगली में पकड़े रख। बोले माँ देखो, फिर वो छोड़ के दिखाए, मतलब वो माँ ही देख पा रही है और कोई नहीं देख पा रहा है। देखो, वो तो अपने जोगमाया शक्ति से भगवान उनको उठा के रखे हैं। तो पहले अच्छा, तो उठा कर भगवान बोल रहे हैं, तो किसको बताना नहीं कि ये ऐसे उठा है। तो फिर उसे उंगली लगाते हैं, फिर ये सब चल रहा है। फिर ब्रजवासी जो है, तो यहाँ पर और एक तत्व है कि जो, जैसे जो ब्रजवासी है वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो ब्रजवासी तो है, कोई कहाँ रहता था, कोई नंदगांव में, कोई बरसाने में, कोई रावल में, कोई गोकुल में, ऐसा ऐसा जगह में सब रहते थे। लेकिन तब जो बारिश हो रहा था, तब जो सारे जो ब्रजवासी थे वो गोवर्धन पर्वत के नीचे में आ गए थे। तो सारे भगवान को तो कभी कभी दर्शन कर पाते, जैसे गोचारण के लिए जाते हैं, गोचारण के लिए आते हैं, तभी दर्शन करते हैं। लेकिन सखाए तो सभी दर्शन करते हैं। लेकिन जो ये सबके मन में जो भगवान का दर्शन करने की जो अभिलाषा थी, तो इसको भी ये गोवर्धन लीला में भगवान उसको पूरी कर रहे हैं, कि सारे जो ब्रजवासी थे उनका जो दर्शन का जो उत्कंठा था, जो प्यास था, तो वो इसी लीला में उसको वो पूर्ण कर रहे हैं। कैसे, तो कुछ तो काम नहीं है, तो ऐसे ही सब खड़े होके भगवान को दर्शन कर रहे हैं, तो उनके जो सौंदर्य है उसको निहार रहे हैं, तो उसमें आनंद मिल रहा है उनको। तो और एक बात है, जैसे भगवान गोवर्धन को धारण किए हैं, तो कुछ ब्रजवासी तो उनके पीछे भी होंगे ना, तो वो तो भगवान का मुख मंडल को दर्शन नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं था। जैसे हमारे पुरी में जो नील चक्र है, तो उनको आप जहाँ पे भी देखेंगे, ऐसा बताया जाता है कि आप उनके, आपकी तरफ ही वो दिखेंगे। ऐसा है कि नील चक्र का दर्शन भगवान जगन्नाथ के दर्शन के समान फल मिलता है। उनको दर्शन करना जो है, भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करना। ठीक उसी तरह जो 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 श्री कृष्ण जो गोवर्धन को धारण किए थे, तो जो जो आगे था, जो पीछे था, जो साइड में था, जो बाएं में था, जो दाएं में था, तो सभी भगवान का मुखमंडल ही दर्शन कर रहे थे। भगवान की अलौकिकता है, दिव्यता है, कि वो ऐसे सब जो जैसे भगवान को दर्शन करना चाहते थे, तो सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मुखमंडल का जो सम्मुख भाग का सभी ऐसे भगवान का सम्मुख और पीछे भाग का कोई अंतर नहीं है। भगवान तो सारे तरह से समान है, सुंदर है, अलौकिक है। तो सब सारे भगवान का मुखमंडल का जो मुख पोर्शन का सभी दर्शन कर रहे हैं। तो ये हो गया, भगवान जी जो है उनका जो इच्छा था वो पूर्ति किए। वो सब जो दर्शन करना चाहते थे, जी भर के भगवान का जो दर्शन अमृत है उनको पीना चाहते थे, तो वही भगवान उनको पूर्ण किए। फिर ऐसे करते करते फिर 7 दिन 7 रात हो गया। तो इंद्र जो है, जो वज्र, ये जितना भी उनका जो भगवान से जो सारी शक्तियां उनको प्राप्त हुई थी, वो सारे शक्तियां वो प्रयोग कर चुके थे। कर करके फिर उनको परेशान हो गए थे। फिर उनको मतलब शक्तियां सभी खत्म हो गई उनकी। तभी तो वो बोले कि नहीं नहीं, कुछ तो ये मुझसे बड़ी शक्ति कुछ है इनमें। तभी उनका रियलाइजेशन आता है कि नहीं नहीं, मुझसे कुछ बड़ी शक्ति इसमें प्रभाव में है। तो मुझसे बड़ी शक्ति कौन है? तो मुझसे जिनसे मैं शक्तियां लेता हूँ वही होंगे, जिनका गर्भ स्तुति में करके आया था 7 मिनट पहले। तो कैसे वो भूल गया? तो अपनी जो गलती है, अपना जो बड़ा जो पश्चाताप उनको हुआ कि मैंने इतना बड़ा पाप किया, जो जिनसे मुझे शक्तियां मिलती हैं, जो स्वयं भगवान हैं, जो मेरे प्रभु हैं, परम आराध्य भगवान है, तो उनकी चरण में मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। इनके बिना और कोई नहीं हो सकता। फिर उनको पछतावा हुआ। फिर वो माफी मांगने के लिए अपने मन में प्रस्तुत हो रहे हैं।
फिर इधर क्या हुआ, जो 7 दिन 7 रात तक जो प्रलय का जो ये था, तो कुछ भी नहीं हुआ वहां पे, कोई ब्रजवासी कोई एक तिनका भी नहीं हिला वहां पे। तो सारे जो है जैसे थे वैसे ही थे। तो ये सिर्फ इंद्र को ये उसका होता कि मैंने उनको परेशान किया, जो सारे ब्रजवासी थे, जो भगवान के भक्तगण थे, जो निज जन थे, परिजन थे, उनको मैं परेशानी में डाला। तो भगवान आए, इतना परिश्रम किए, ये किए, वो गोवर्धन जी को धारण किया, बहुत ही मतलब उनको पछतावा हो रहा था। तो इधर क्या होता, भगवान का तो अलग लीला चल रहा है, वो भी अलग लीला चल रहा है, ये भी अलग लीला चल रहा है। तो सारे जो ब्रजवासी जो थे वो सोचते अरे ये तो जो कान्हा है इतने देर तक वो पकड़े रखा है, चलो हम उसको थोड़ा हेल्प करते हैं करके अपने जो लाठी है उनको वो गोवर्धन जी के नीचे लगाते हैं सपोर्ट के लिए। तो भगवान को बोलते अरे तू तो इतना छोटा लड़का है, कितनी देर तक पकड़ेगा, हम लोग तो थोड़ा सपोर्ट करते हैं। बोले ठीक है आप ही लोग सपोर्ट करिए, मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। जैसे ही वो थोड़ा सा उंगली को ये किए तो गोवर्धन पूरा हिलने लगा। तो फिर वो सारे जो लकड़ी थे उनके सारे टूट गए। तो वो समझ लिए कि नहीं नहीं, ये सिर्फ कृष्ण ही उनको ये कर रहे हैं, हमारा कोई शक्ति नहीं है। जो हम भगवान के शरण में आए हैं तो भगवान ही हमको रक्षा करेंगे। हमें और उसमें भगवान के ऊपर ही संपूर्ण निर्भरता, भरोसा और आस्था बनाए रखनी है। तो भगवान ही जो है हमको जो बोले हैं, जो सुरक्षा के लिए वो अपना जो वचन है वो निभा रहे हैं। फिर ये सब जो है जैसे ही खत्म हो जाता है तो भगवान है गोवर्धन जी को फिर सभी जो ब्रजवासी थे फिर वो बाहर आ जाते हैं। फिर भगवान है गोवर्धन जी को जहाँ पे थे वहीं पे फिर उनको पुनः स्थापित कर देते हैं। फिर जो आते हैं तो सारे जो ब्रजवासी थे वो कृष्ण को मतलब भगवान के प्रेम में, भगवान के प्रति जो अनुगत्य है, भगवान के प्रति जो आभार है वो प्रकट करने के लिए सब आ जाते हैं। जसोदा माँ तो उनको गोद में उठा लेती हैं, उनको सारे जो नंद बाबा हैं सभी उनको प्यार कर रहे हैं, सभी जो ब्रजवासी हैं, जो गोपियां हैं तो सभी उनको प्रेम कर रहे हैं, सभी उनको गले लगा रहे हैं, सभी उनको जैसे माता जसोदा थे उनको मुस चुंबितंग बिंब रक्ता धरंग में, तो उनको बार बार उनके मुख कुमंडल को चुंबन कर रही हैं। तो ऐसे ही छोटे जो कान्हा थे 7 साल के, सभी उनको प्यार कर रहे हैं, उनको ब्रजवासी जो हाँ तुमने हमको ये महाविपद से बचा लिया, इंद्र के प्रकोप से आपने हमको रक्षा कर लिया। तो सभी खुशी से नाचते गाते हैं। फिर भगवान जो फिर से जो क्या है, भगवान उनको फिर सब सारे जो ब्रजवासी थे तो उनको वो अपने अपने जो घरों में जाते हैं। फिर यशोदा माँ जो है देखिए उनको तो जो माँ होती है ना तो उनको पता होता है कि मेरा बच्चा तो 7 दिन 7 रात तक कुछ भी खाया नहीं, फिर देखो इतना परिश्रम कर रहा है, एक हाथ उठा के रखा है, कितना परिश्रम। तो बोले कि सारे ब्रजवासी भी इसको अनुभव किए। तो वो क्या बोले ठीक है हम तुमने तो 7 दिन तक कुछ नहीं खाया, 7 रात तक कुछ नहीं खाया, इसलिए हम एक भगवान जो एक दिन में भोग लगा तो 8 प्रकार से 8 प्रहर में मतलब 8 प्रकार के व्यंजन उनको भोग लगाते हैं। तो फिर ठीक है तुमने 7 दिन तक नहीं खाया ना, तो 8 गुना 7 यानी कि 56। तो इसी दिन से वो भगवान जी को 56 भोग वो अर्पण करते हैं कि अपने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया, इसलिए अभी ये जो 56 भोग है सभी जाके घरों में जाके उसको भोग प्रस्तुत करते हैं। तो 56 भोग भगवान को अर्पण करते। उसी दिन से ये जो प्रथा है जो हमने सुना था कि उसी दिन से 56 भोग का प्रथा जो है भगवान को लगता है 55 नहीं कि 57 नहीं, 56 भोग उसी गोवर्धन लीला से ही उसका जो है प्रारंभ होता है। फिर बारी हुआ किसका ना, इंद्रदेव जो थे अपने बहुत ही पछतावे की आग में, वो पश्चाताप आग में जल रहे थे। तो उनका जो गर्भ था वो तो चकनाचूर हो गया था। भगवान कुछ नहीं किए, भगवान उनको डायरेक्टली कुछ नहीं किए, अपने आप ही वो बारिश किए, ये किए, वज्र किए, फिर आघात किए, फिर अपने आप ही वो समझ गए। जो बुद्धिमान है, जो भगवान का भक्त है, वो हमेशा भगवान के एंगल से ही सोचेंगे कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं किया, शायद मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, भगवान मेरे इस कार्य से प्रसन्न है कि अप्रसन्न है। तो ऐसा वो एंगल से वो अपने जो कार्य को है मापता है, सोचता है, फिर वो उनको अपने आप को परीक्षा करता है। फिर वैसे ही इंद्रदेव जो थे तो वो तो स्वर्ग के राजा थे, तो उनको ये पछतावा हो गया, उनको पता चल गया ये कोई और कोई नहीं भगवान कृष्ण है जिनका मैंने गर्भ स्तुति करने के लिए गया था, और वही हमारी कृपा से ही हमको कृपा करने के लिए ही इस धरती पर प्रकट हुए हैं। हमारे जो क्षीर सागर में जाके हमने जो स्तुति किया था, तो उसके बाद गर्भ स्तुति किया था, फिर वही प्रकट हुए, फिर मैं उन्हीं को नहीं जान पा रहा हूँ,
मतलब गर्भ में मैं अंधा हो गया, उन्हीं की शक्तियां उन्हीं के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। फिर वो कैसे जाएं भगवान के पास, कैसे जाएं? तो उनका बहुत पछतावा होता है कि भगवान तो है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, तो उनको मतलब गाय को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। तो ठीक है, वो क्या किया, पहले क्या सुरभि गाय को लेकर आए, फिर गाय को आगे गए, फिर ये जो है इंद्रदेव उनके पीछे गए। तो गाय सुरभि गाय जो जाके भगवान श्री कृष्ण के पास जो जाते हैं, तो भगवान उनको देख के प्रसन्न हो गए, बोले कि क्या है? तो बोले ये जो हमारे इंद्र हैं तो वो बहुत पछता रहे हैं, उनके बहुत बड़ी गलती हो गई और आपके चरण में अपराध किए हैं, तो वो क्षमा याचना के लिए आना चाहते, वो आ नहीं पा रहे हैं, उनको संकोच लग रहा है, तो इसलिए वो मतलब मेरे पीछे पीछे वो आ रहे हैं। फिर जाके वो भगवान से क्षमा प्रार्थना किए, तो भगवान भी उनको, जो अपने जो भक्तगण है, जो देवता गण है, तो उन्हीं की शरण में सभी हैं, तो उन्हीं को कृपा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, तो भक्तगण को उद्धार करने के लिए, तो फिर वो उनको क्षमा कर देते हैं। फिर वो बोले कि आपका जो गर्व था इसको वो मेरा, वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरा जो गर्व है वो नष्ट हो गया, मैं आपसे जो है आपके निर्देश अनुसार ही, आपके शरणागत में रह के, अनुगत में रह कर ही मैं जो अपना जो कार्य है, मुझे आपने जो कार्य सौंपा है, मैं वो निर्वाह करूंगा। फिर ये जो लीला है, ये गोवर्धन के एक स्थान पर हुआ है, जो आज भी है। तो आप चाहेंगे गोवर्धन का परिक्रमा लगाएंगे, तो वहाँ पर एक है इंद्रदेव का जो आकर जो क्षमा मांगे, क्षमा स्थली, वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर सभी स्टैचू ऐसे बने हुए हैं, तो इंद्रदेव आके भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। तो आप गोवर्धन परिक्रमा लगाएंगे तो ये स्थान भी है, आप दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो गोवर्धन धारण लीला है, तो गोवर्धन क्या है, गो जो है गाय है, जो गाय को आनंद देता है, आनंद बुद्धिवर्धन करता है। जैसे गाय वहां पे जाकर अपना घास खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, तो संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसी तरह से गो माने सेंसेस है, जो कि भगवान के सेंसेस को, जैसे भगवान जो गोवर्धन के भगवान इसने लीलाएं किए हैं, उनके ऊपर वो गाय को लेकर चराते हैं, उनके ऊपर सारे बहुत सारे पर्व, ये ऊपर उनका चरण चिन्ह है। तो जो गिरिराज जी तो जो है वो इस मतलब भगवान के जो सेंसेस है उनको आनंद प्रदान करते हैं, वहाँ पे खेले हैं, खुश हुए हैं, संतुष्ट हुए हैं, तो इसलिए वो उस तरह से भी गोवर्धन है, जो भगवान के सेंसेस को आनंद प्रदान करते हैं। और एक बात जो है कि जब जब वो भगवान जो गोवर्धन जी को धारण किए थे, तो उसके अंदर वो क्या किए थे, जो सारे जो बाहर जो बारिश ये सब जो भयभीत थे, तो वो क्या किए, बांसुरी उसमें एक हाथ से गोवर्धन पकड़े, दूसरे हाथ से वो बांसुरी बजाए, तो बांसुरी जो बजाए, तो उसका जो परिवेश था इतना आनंद मोहक, मनमोहक, प्रमोद मोहक हो गया कि सभी उसे खुश हो गए थे। तभी तो मधुमंगल बोलते, अरे रे रे कान्हा, तू एक काम कर, ये जो बांसुरी है ना, तू मत बजा। तो क्यों? बोले थे क्यों? क्योंकि तू जो बांसुरी बजाता है ना, तो जो वस्तु है, जो जीव है, जो जिसका स्वभाव है, उसका विपरीत वो करने लगता है। जैसे जमुना जी है, तो वो बह रही है, उनका स्वभाव है कि बहना, लेकिन वो जो तू जो बंसी बजाता है, जमुना जी रुक जाती है, बहना बंद हो जाता है, वो रुक जाते हैं। फिर जो स्थिर है वो बहने लगता है, वो गतिशील हो जाता है, जो स्वभाव है उसका विपरीत वो काम करते हैं। तू क्योंकि अगर तू अभी जैसे तू बांसुरी बजाता तो पत्थर है वो पिघलने लगते हैं, जो पानी है वो स्थिर हो जाता है, तो स्वभाव के विपरीत वो सारे जो लीला है वो हो जाते हैं। तो तू अभी बांसुरी बजाएगा तो ये गोवर्धन जो है वो स्थिर है, वो अगर फिर ढेर से जो पिघलने लगेगा, फिर हम उनके सब नीचे आ जाएंगे। तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं तो जो बांसुरी बजाते हैं सबको आनंद प्रदान के लिए, जो गाय उसके नीचे थे, जो गौवंश थे, जो सारे ब्रजवासी गण थे, सभी आनंद उसमें आनंद मतलब उनका अनुभव कर रहे थे। तो ऐसे ही जो भगवान ने जो गोवर्धन धारण किया और ब्रजवासियों के साथ लीला किया, इंद्र का गर्भ नष्ट किया, भगवान ब्रज के जो वासी थे उनका जो इच्छा था भगवान को दर्शन के लिए संपूर्ण उनको तुष्टि दिया। फिर गिरिराज का जो भगवान गिरिराज के जो प्रकट हो रहे हैं, तो उनका जो भक्तगण है तो उनको उनका सेवा करने का अवसर दिया, अन्नकूट महोत्सव किया। फिर परिक्रमा जो लगाए हैं, जो भी परिक्रमा लगाएंगे उनको गिरिराज उनके ऊपर प्रसन्न होंगे, तो उनके ऊपर कृपा करेंगे, उनका आध्यात्मिक उन्नति होगा। ये सारे जो लीलाएं हैं जो ब्रज में ये सब जो कर रहे हैं, तो ये गोवर्धन लीला उसमें बहुत ही प्रमुख है, भगवान का प्रिय है, स्वयं भगवान है। तो हम सभी भक्तगण जो श्रद्धा पूर्वक ये जो भगवान का ये वाणी को, ये जो गोवर्धन लीला को हम श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान गोवर्धन के चरणों में हम कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा भिक्षा करते हैं, और सारे वैष्णव उनके चरण में कृपा भिक्षा करते हैं।
और जो भी जैसे भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, तो हमारे तक कोई योग्यता नहीं है। सर ने हमको ये क्लास कल दिया था, तो मैं ये सोचा कि 2 पार्ट में इसको करेंगे। तो भगवत जैसे हम कार्तिक का महीना है, तो हम भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, और ये जो गोवर्धन लीला, जैसे जैसे कोई उत्सव आता है, तो हम उनका भी ग्लोरिफिकेशन है, उनका कथा सार भी सुनाते हैं, हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, साधु संग करते हैं। तो कार्तिक के महीने में ये सारे का बहुत ही अमोल फलदायी है। तो जैसे ही ये जो क्लास कर रहे हैं, ये जो साधु संग हम कर पा रहे हैं, ये सारे जो पंकज नाथ सर हैं, तो उनका इनिशिएटिव से हम ये लोग सब ये जो श्रद्धा पूर्वक ये जो सब सारे आध्यात्मिक कार्य है, उसमें हम अपने आप को शामिल कर पा रहे हैं। इसलिए सर के चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और अभी तो बहुत लेट हो चुका है, तो बहुत जो भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के लिए कुछ लोग लेफ्ट भी कर चुके हैं, तो बाकी जो है मैं सबसे मैं वाणी को ही विराम देता हूँ। तो तो एक है जो एक मैं छोड़ गया था, तो एक गोवर्धन में एक है जैसे जो भगवान आए, जो जैसे ये आए हैं ना, जो ब्रजवासी लोग जो भगवान को जो एक स्तुति किए हैं, जैसे जो बारिश हो रहा था, तो ये बहुत ही हृदय स्पर्शी स्तुति है, जो भगवान का प्रणाम मंत्र के रूप में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ गया था उसको। तो क्या स्तुति कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथं गोकुलं प्रभो दातुमर्हसि देवानां कुपिताद् भक्तवत्सल। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथं गोकुलं प्रभो दातुमर्हसि देवानां कुपिताद् भक्तवत्सल। हे कृष्ण, हे प्राण प्रिय, हे महाभाग, हे प्रभु, इस अवस्था में केवल आप ही हमारे रक्षक हैं, समस्त गोकुल का आप ही एकमात्र स्वामी है, भक्त वत्सल, केवल आप ही हमको इंद्र के इस क्रोध से आप बचा सकते हैं। तो ऐसे उनको भगवान को ब्रजवासियों ने स्तुति किया था। तो हम भी जब विपद में आते हैं, तो सिर्फ भगवान को ही ऐसे स्तुति करते हैं कि हमारा जो भी हम अपनी अज्ञानता से और अपनी भूल से जो भी गलती करते हैं, और जो भी विपरीत परिस्थितियों में जैसे हम आते हैं, तो हम भगवान के ऊपर ही शरणापन्न होते हैं। तो ऐसे ही मंत्रों के द्वारा, जैसे ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का शरण में आकर उनको शरण मांगी है, तो हम वैसे ही भगवान के चरणों में शरण मांगेंगे कि हमको भी जो सारी जो विपदा है, जो सारी जो हमारी अज्ञानता भूल से हम कर बैठते हैं, हमारी आध्यात्मिक अधोगति उसमें होने का संभावना है, तो इसी से हम उनको प्रार्थना करते हैं कि जैसे ब्रजवासियों के ऊपर आपने कृपा दृष्टि देकर उनको महाविपद से उनको उद्धार किया है, ऐसे ही हम ये जो विषय सागर है उसमें हम फंसे हुए हैं, तो हमको भी आपके कृपा मिलने के लिए हम भी आपका स्मरण करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपके ऊपर आपके चरणों में निवेदन करते हैं, आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हैं। हरे कृष्णा। अब अगर कोई तो यहीं पे वाणी को विराम लेते हैं। सर से हम जानना चाहेंगे, सर अगर कुछ मुझसे अगर भूल चूक कुछ हुई हो, तो मैं सभी के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ, और सर से निवेदन करूंगा कि कुछ अगर सर अपने समय निकल कुछ बोले तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लीला कार्य में बोले, हम तो उतना उसको पढ़ा भी नहीं था, बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग उसको सुन लिए। तो वही है, जो जिससे गर्व है, भगवान किसी का गलत नहीं करते, तो हम लोग उससे सीखना पड़ेगा कि बिन भक्त लोग होने से मनुष्य का गर्व को पहले ही गर्व बन जाने से बोलते हैं, इसको पूरा करते हैं, सबसे बन करते हैं। और इंद्रदेव हर जगह जो भी प्रॉब्लम होता है, इधर हेड ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेटिव डेमीगॉड, तो सबका, लेकिन उनका यही खासियत है कि जब भी कुछ गलती होता है, तो फिर वो गलती का बाद में भगवान से माफी मांग लेते हैं। और रक्षक लोग का वही है, जस्ट भगवान से दूर में रह जाते हैं, लेकिन जब भक्त है वो सब समय जो भी प्रॉब्लम होता है, वो फिर होने के बाद में भी भगवान के पास में जाते हैं। तो इसीलिए उनको देवता बोलते हैं। देवता लोग का ये हेड है,
ये सब समय अपना गलती तो करते रहते हैं, हम लोग भी बहुत सारा गलती करते हैं, लेकिन फिर भगवान से हम माफी मांग रहा है, भगवान के पास में जाना है, तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। इसलिए करने के बाद भी भगवान को उनका जो भी है हेड देवता लोग का जो हेड है, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, तो वो ऐसे पोजीशन पे रखते हैं। तो आज जो अन्नकूट महोत्सव है, तो जहाँ पे मंदिर है, लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो घर में भगवान का बहुत सारा बना के अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस करना चाहिए। और हम तो अभी गुरुदेव के पास, हम तो अभी रास्ते में ट्रेन में हूँ, गोइंग टू इसका हमारे बुलाया हुआ नाम, तो दैट आई कैन अटेंड, इसलिए थोड़ा सा मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था, बट एनी अगर ट्रेन हो तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और श्याम कृष्ण को बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छा हरे कृष्ण। अगर समय है तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर रास्ते में है फिर भी हमारे पार्टिसिपेट किए और हमको इनकरेज किए, और अपना जो सुंदर भाव है उसको प्रकट किए। सर अभी देखिए व्यस्त शेड्यूल में भी अब वो गोवर्धन लीला में शामिल होने के लिए वो हमारे जो रघुनंदन धाम को जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे भव्य तरीके से ये गोवर्धन लीला का आयोजन वहाँ पे प्रस्तुति चल रहा है, तो हम तो नहीं जा पाए। तो ये सौभाग्य है जो इस ब्रज लीला में, ये जो गोवर्धन लीला में जो भी शामिल होंगे उनको गिरिराज जी का बहुत अशेष कृपा उनको प्राप्त करेंगे। तो हमारी तरफ से सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और गिरिराज जी का बहुत कृपा आपको मिले, आप आध्यात्मिक उन्नति हो आपका। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। एनीबडी वांट्स, अगर समय है तो कोई अगर अपना कुछ रिलेशन बताना चाहते हैं, अदरवाइज अभी तो देरी हो चुका है, सब ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में जाएंगे, तो विल कंक्लूड दिस क्लास हियर। अगर कोई अपना अनुभव या फिर कुछ बताना चाहते हैं रिलेशन, दे आर मोस्ट वेलकम। सुतापा प्रभु, सुतापा प्रभु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हमारे जो सुशांत सर हैं, तो उनका जो दीक्षा नाम है, बहुत ही अच्छा नाम गुरुदेव ने उनको दिया, मैं तो सुन के पूरा दंग रह गया। तो उनको सुतापा प्रभु, जो भगवान के जो वृष्णि और सुतापा, जो कि बहुत साल तपस्या करने के बाद उनको भगवान के माता पिता होने का सौभाग्य मिला था, तो उनको ये नाम गुरुदेव ने दिया है। पता नहीं कैसे उनका कोई बहुत बड़ा स्वीकृति होगा। तो सुतापा प्रभु, यू वांट टू से एनीथिंग? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का क्लास मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा तरफ से वो एक्सप्लेन किए। एक्चुअली वो हार्ट टचिंग है। एक्चुअली मेरे को ये सब नहीं पता था। मैं भी जब बहुत छोटा था ना, मैं गांव में हमारा सब काव थे, गाय बकरा, वो लेकर मैं जब गया था, मैं मेरा चाइल्डहुड अभी मैं रिकल कर रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मेरे को तो इस बारे में नहीं पता था, आज थोड़ा वो पता हुआ। हमारा ये जो क्लास अच्छा लग रहा है। मैं सब कल में रात में सुन रहा था पंकज सर से, कैसे एक्चुअली अच्छा तरफ से सब एक्सप्लेन कर रहे थे, कितना कितना पुराना। सर का भी मेरा ज़्यादा 100 + 120 अराउंड हो गया। सब वीडियो पूरा अच्छा माने जब हो रहा है लग रहा है क्या क्लास होगा क्या। फिर भी वो बाद में जब सुन रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू पंकज सर, श्याम कृष्ण प्रभु, आचार्य प्रभु, सब हमारा सीनियर डिप्यूटी है। बहुत अच्छा लग रहा है हमारा ये जो ग्रुप। तो जैसे अधिक अधिक हम लोग जुड़ेंगे थोड़ा, जैसे सर हर टाइम बोल रहे हैं ना, टॉलरेट कोऑपरेट। तो जब भी टाइम हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ जोड़ने के लिए।
तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर फॉर द क्लास टुडे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पिला प्रभुपाद महाराज की जय। चित्त प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି କିଛି ଆ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କହିଲେ ଏଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ହିଁ ଶୁଣିବା ହିଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଉ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ତଥ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ସେଟା ଏଇ ଲୀଳାର ବି ମହତ୍ଵ ରହୁଛି ବହୁତ। ମାନେ ଆମର ଦେବତା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବି ରହୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ତ ନିଜେ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଥାର୍ଡ ହେଲା ଭକ୍ତଙ୍କର ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ। ଭକ୍ତ ଗିରିରାଜ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ବି ସେ ତାଙ୍କର ମାନ ବଢାଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମାନ ବଢାଇଥିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବଢାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ବି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, ଯଦି ଅନ୍ୟ କେବେ କ୍ଲାସରେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ମାନେ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ କି କଣ କହିଥିଲେ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସାର୍ ଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା, ସାର୍ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆପଣ ଯାହା ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ସେ ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବେ। ସାର୍ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେ। थैंक यू चित्त प्रभु। आचार्य रत्न प्रभु को आम निवेदन करिया, से यदि किछि समय हमको दे पारिबे बा किछि तांको रिलेशन कहि पारिबे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। मैं क्या बताऊं, आपने तो सारे डिस्कशन को इतना सुंदर करके मतलब रखा सबके सामने, हृदय गदगद लग रहा है, जैसे कि मतलब बहुत ही सुंदर है। तो यही है भक्त लोगों की जो हृदय है, वो यही है कि वो ऐसे सजाते हैं भगवान की लीला को कि मतलब सुनते ही बनता है। तो और कुछ नहीं है, बट आप ऑस्पिशियस डेज में आप जो भगवान का जो भी लीला है या फिर कोई भक्तों का आविर्भाव है, तिरोभाव है, जो भी है, उसको जो भाव है ना, तो उसमें भाव के साथ आप जो बताते हैं, तो हमें बहुत ही मतलब लाभ हो रहा है। मतलब तो इसीलिए फिर आपको भी मेरा अशेष कृतज्ञता है, दंडवत प्रणाम। एंड भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। मैं तो अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो थोड़ा क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आचार्य प्रभु जी की जय, जो ऐसा वो सुंदर भाव रखते हैं और एनकरेज करने के लिए शब्द बोलते हैं। जो भी है, हम तो यथाशक्ति यथामति, जैसे ही हमारे कोई योग्यता नहीं है, मगर जैसा ने कल रात में हमको इंस्ट्रक्शन दिया, तो हम जैसे जो कुछ वैष्णव से, गुरु वैष्णव से जो भी सुने थे, तो वैसे ही हम प्रस्तुत करने का यहाँ पे प्रयास किए हैं। और एनीबॉडी सौम्य रंजन प्रभु आपण अछंती कि जदि किछि कहि परिबे, नले आमे समस्त तांकर वक्तव्य देई सालेन, तो आमे एक क्लास को एठी आमे विराम देबा। सौम्य रंजन प्रभु व्यस्त थांती तांकर अन्य एक्टिविटी रे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ମାନେ କଣ କହିବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ, ସତେ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସେ ମାନେ ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ହିଁ ଘଟୁଛି, ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମର ଆଚାର୍ୟ ରତ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇପାରିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ମାନେ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ମାନେ ଆମ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ବା ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।
हरे श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, पंकजनाथ प्रभु की जय, माई प्रभु की जय। ये सारे जो वैष्णव का गुणगान है जो आप जो कर रहे हैं, सारे वही गुरु वैष्णव के चरणों में समर्पित है, जो कि इस धारा में हमको कुछ हमको संग देते हैं, तो हम मुख से कुछ वाणी रूप से कुछ निकल पाता है, तो ये सब उनकी कृपा है, उनके कृपा बिना और कुछ नहीं है। तो आप जो अपना सरल हृदय से जो बताए, जो ये किए, तो ऐसा ही तो आपका आचार्य तनय प्रभु ने आपको इंस्पायर किए हैं, आप आके ये क्लास रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं, पैरेलली आप दूसरे अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी भी कर रहे हैं और ये क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आप ये सारे जो है क्लास हो रहा है इसको सुन भी कैसे पा रहे हैं सभी। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ऐसे सरल भक्तों को भगवान अपने अनुगत्य में रखते हैं और उनको अपना साधु संग देते हैं। तो सारे जो है ये भगवान के चरणों में, गुरु वैष्णव के चरणों में समर्पित हैं। ऐसा एक रियलाइजेशन है, जैसे आप बता रहे थे, तो कल एक इंस्पायरिंग कृष्णा इस्कॉन इंस्पायरिंग यंग ऐसा करके एक ग्रुप है बुर्ला में, तो ऐसा एक डिवोटी सिद्ध पुरोहित करके डिवोटी है, तो ऐसा ही रियलाइजेशन वो लिखे थे अपना जो ग्रुप में सबको शेयर किए थे कि मैं जो पहले तो मैं ड्रिंक कर रहा था, नॉनवेज खा रहा था, जैसे ही मैंने बहुत अल्प समय में के लिए मैंने साधु संग किया, इस्कॉन बुर्ला के डिवोटी के साथ में संग किया, मंदिर गया, फिर जो गीता के जो क्लासेस हैं उसको ज्वाइन किया, उसके बाद मैं जो वृंदावन का टूर हुआ, मैं वृंदावन जाकर जब आया तो मुझ में अद्भुत पूर्व में चेंज में परिलक्षित किया। तो मैं सारे जो नॉनवेज था, अल्कोहल था, सारे जो खराब चीजें था, मैं उनको अभी छोड़ दिया हूँ। मैं अभी शुद्ध सात्विक आहार लेता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, और मैंने एक तुलसी का एक लाइन मतलब एक सरिया जो है गोटे सरी तुलसी माड़ी मु पिंधि आरंभ कर दीजिए, और सेबेठू मुझे तुलसी माड़ी मु स्पर्श कली, मु पिंधिली, मते आध्यात्मिक अनुभूति बहुत परिप्रकाश होची, मु बहुत पवित्र अनुभव करूची। ऐसा ही रियलाइजेशन, बहुत बड़ा रियलाइजेशन वो लिखकर वो ग्रुप में पोस्ट किए थे। तो उनको मैं भी अपने एक दोस्त को भी वो फॉरवर्ड कर, देखो कैसे जो डिवोटी के आश्रय करता है तो उनका रियलाइजेशन कैसा होता है, कैसा उसका अद्भुत परिवर्तन होता है। तो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद महाराज, ऑल ग्लोरीज टू ऑल वैष्णवस, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। तो आज का जो सत्र है हम यहीं पे विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं। सारे वैष्णवों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। गोवर्धन लीला की जय। गिरिराज गोवर्धन लाल की जय। गोवर्धन धारण लीला की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। पंचकर्तृभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां नमः। हरे